हेलो 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 एवरीवन। देखो, आई नो थोड़ा लेट हो चुका है बिकॉज आई वाज डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर वेरी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, सो इट टुक मी टाइम. By the way, a quick introduction. My name is Aryan. I'm a software engineer in Goldman Sachs and all that stuff. वो बाद में देख लेना. Uh, Today we will do Lead Code weekly contest 331. Okay, all four questions. Let's start with the first one. A question says that this one. Take gifts from the richest pile. You are given an integer array gifts. So हमारे पास ये array है gifts, which denotes the number of gifts in the various piles. ठीक है. Every second you do the following. Choose a pile with the maximum number of gifts. So जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल एक साथ ही. तो आपकी गिफ्ट्स एरे है, ये रही. लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. वी चूज द पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स. तो इस पाइल में से वी चूज अ पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स व्हिच इज 100. ठीक है, वी चूज 100. इफ देयर इज मोर देन वन पाइल विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स, वी कैन चूज एनी. ठीक है, मतलब इफ देयर आर मेनी हंड्रेड्स, वी कैन चूज एनी हंड्रेड्स, एनी 100 which we want to choose. Leave behind the floor of the square root of the number of gifts in the pile and take the rest of the gifts. ठीक है, तो we will leave behind यहाँ पे square root of this 100 which is 10. तो we will leave behind this 10. Return the number of gifts remaining after k seconds. तो हर सेकंड पे I need to remove the gift from the pile. स्क्वायर रूट करना है उसका, वापस डाल देना उसी उसके अंदर. तो मैंने 100 निकाला, 100 निकाला. लेट्स मूव थ्रू एग्जांपल. 100 निकाला एट द फर्स्ट सेकंड. आई रिमूव्ड 100 एंड द लेफ्ट बिहाइंड आर स्क्वायर रूट ऑफ 100 व्हिच इज 10. तो मैंने डाल दिया 10. तो नाउ द पाइल इज दिस 9, 4 एंड 10. राइट, नाउ व्हाट आई डू इज कि एट द नेक्स्ट सेकंड आई चूज, एंड इसमें लिखा है ना कि चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गिफ्ट्स, the pile with the maximum number of gifts. तो we choose the pile with maximum number of gifts which is currently it is 64. तो मैंने 64 में से निकाला एंड बचा हुआ क्या डाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 64 which is 8. तो यहाँ पे 8 डाल दिया. राइट, नाउ एट द थर्ड सेकेंड हमने मैक्सिमम निकाला which pile has maximum which is 25. तो यहां से स्क्वायर रूट ऑफ दिस which is 5 डाल दिया वापस इसके अंदर. Last में, because at the fourth, because it was the first, second, third, and this is the fourth, second. At the fourth, I choose the maximum number, which is actually 10. अब इसका square root क्या होता है, which is 3 point something, but हमें actually में जाना floor value पे. इसमें लिखा है ना floor of the square root. So we go to the floor value. So हमने यहाँ पे डाल दिया 3 वापस. Now what we need to answer is the remaining gifts are this, which are actually matching with our answer. ठीक है, so the number of gifts remaining is 29, which is the sum of all this. So we know at every step that for every step, when I say every step, I means number of steps are k. At every step, I will choose the maximum element. I will remove that maximum element from my array, square root it, and put it back in my maximum in my array. ठीक है, it's very simple. If my array is this, so in this array, I will choose out the maximum element, which is this. I will remove it from here. I will square root it. I will get the value. I will put it back in this array. And I will repeat this process k times. अब to know कि how to solve this, let's see कि constraints क्या है. हम पता चलिए मैं solve करना क्या है. But constraints will help us to know कि solve करना कैसे है. ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स हैं k is 1000. सो मेरा k है 1000. माय एरे ऑफ गिफ्ट्स, इट इज ऑफ लेंथ 1000 ओनली. मतलब जो मेरी गिफ्ट्स एरे है इसकी लेंथ इज आल्सो 1000. लेट्स से इट्स गिफ्ट्स एरे की लेंथ इज 1000. तो लेट्स से इट इज n, तो n इज 1000 व्हिच इज दिस. नाउ अब ये बता रखा है कि जो गिफ्ट्स ऑफ i है, मतलब हर एक उसके अंदर कितना बड़ा हो सकता है गिफ्ट ऑफ i. इट कैन बी 1e9. राइट, तो मेरा गिफ्ट ऑफ i इट कैन बी 1e9. अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे हर केस स्टेप पे, मतलब हर आई हैव टू गो टू एवरी केस स्टेप. तो मतलब मुझे, अगर मैं एक बार सोचूं, मतलब मुझे हर बार
इफ लेट्स से कि हमारा 1000 ही है, तो मुझे 1000 बार उस एरे में जाना है, मैक्सिमम एलिमेंट चूज करना है, स्क्वायर रूट करना है मैक्सिमम एलिमेंट का, वापस डालना है। तो स्क्वायर रूट करना इज ओ वन ऑपरेशन, मैं कुछ भी करके स्क्वायर रूट कर सकता हूं, बट उस एरे से मैक्सिमम एलिमेंट चूज करना, इसको मैं किस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूं? या तो मैं बाबा ऐसा करूं कि मैं एरे लूं, फिर से सॉर्ट करूं एरे को, मतलब मेरे पास एक एरे थी ये वाली, राइट, ये वाली एरे थी, लेट्स राइट इट अगेन, 25 64 9 4 एंड 100, दिस वन, राइट, या अब मैंने फर्स्ट स्टेप में, अब मुझे ऐसा करना है 1000 बार, राइट, 1000 बार क्या स्टेप करना है कि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट चूज करना है इस एरे से। तो अब या तो मैं इस वेक्टर को लूं, इसको सॉर्ट करूं, फिर इसमें से आखिरी एलिमेंट हटाऊं और फिर वापस आखिरी एलिमेंट डालूं, ऐसा कर सकता हूं ना, हटाऊं मतलब एट एवरी स्टेप, मतलब एक स्टेप हुआ k इक्वल टू 1 है मेरा, मैंने इसको पहले सॉर्ट किया, फिर उसमें से आखिरी एलिमेंट निकाला बिकॉज वो मैक्सिमम होगा, फिर उसको स्क्वायर रूट किया, फिर उसको डाल दिया वापस एरे में, फिर अगले स्टेप पे k इक्वल टू 2 पे फिर से इस पूरे एरे को सॉर्ट किया। तो जब मुझे मैक्सिमम एलिमेंट ही निकालना है तो एक चीज दिमाग में नहीं आ रही, प्रायोरिटी क्यू, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू से हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट ही निकलता है। तो सिंपल क्या कर लूंगा मैं, आई विल टेक अ प्रायोरिटी क्यू एट k इक्वल टू 1, मैं पहले सारे एलिमेंट डाल दूंगा अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर, k इक्वल टू 1 है, मैंने प्रायोरिटी क्यू होती है मैक्स हीप एंड इट कैन बी मिन हीप आल्सो, बट स्टैंडर्डली बाय डिफॉल्ट इट इज मैक्स हीप। तो मिन हीप वी कैन राइट आल्सो बाय जस्ट ग्रेटर देन करके, ग्रेटर ब्रैकेट इंट करके इन C++। तो इन प्रायोरिटी क्यू व्हाट आई विल डू इज एट k इक्वल टू 1, मेरे सारे एलिमेंट्स प्रायोरिटी क्यू में है इस समय, मैंने आखिरी एलिमेंट निकाला, इट विल बी 100, इसका स्क्वायर रूट किया और वापस डाल दिया प्रायोरिटी क्यू के अंदर। नाउ द प्रायोरिटी क्यू इज लाइक दिस, a priority queue is always, it always gives the maximum element on top, अगर if I do a priority queue dot top, it will always give the maximum element। तो at k equal to 2 when I get the maximum element it will give me 64। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा पॉप, इसका किया स्क्वायर रूट, वापस डाल दिया इसी एरे के अंदर, which will become 25 8 9 4 and 10। at k equal to 3 what I will do is, मैं फिर से प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट निकालूंगा विच विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट विच विल बी 25, ये आएगा, स्क्वायर रूट किया, एंड आई विल डू दिस स्टेप k नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो इससे क्या हुआ अपना, सिंपल, तुम्हें वापस सॉर्ट नहीं करना पड़ा, बिकॉज प्रायोरिटी क्यू ही वो उतनी बार ही निकालेगा एलिमेंट जो n एलिमेंट्स हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन k इंटू लॉग n which is the length of this array, because priority queue के अंदर n एलिमेंट्स होंगे हर बार, तो वो उसको एक ऑपरेशन जो होगा प्रायोरिटी क्यू का, वो उसको n एलिमेंट्स में से देखना पड़ेगा कि विच इज द मैक्सिमम एलिमेंट, और k बार हम करेंगे इस प्रोसेस को, बिकॉज हर बार एक एक एलिमेंट आता रहेगा मेरे पास, बिकॉज k इक्वल टू 1 होगा, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 4, ऐसे करके अपने पास k स्टेप्स होंगे जहां पे मैं n एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट देख रहा हूं, निकाल रहा हूं, वापस डाल रहा हूं, और लास्ट स्टेप में जब k कंप्लीट हो जाए मेरा, मतलब जहां तक मुझे जाना तक k मेरा पूरा हो गया, तो आई हैव दिस प्रायोरिटी क्यू, बस ये मैं प्रायोरिटी क्यू से सारे एलिमेंट निकालता रहूंगा while not eq.empty, ऐसे करके आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू इज कि सिंपल एक ले लिया सम, लेट्स से इंटीजर सम विच इज लेट्स से 0, और हर एक एलिमेंट को निकाल रहा हूं, बिकॉज अब हर एक एलिमेंट प्रायोरिटी के अंदर जो होगा वो होंगे एक्चुअली जो लास्ट में बचे हैं, विच इज दिस थिंग, ठीक, बस यही करना है अपने को। तो लेट्स सी द कोड एक बार इसका। तो सिंपल, पहले क्या किया आपने, प्रायोरिटी क्यू ले ली एक, एंड इट्स अ मैक्स हीप, ठीक है, इट्स अ मैक्स हीप। अब मैंने n ले लिया विच इज गिफ्ट्स, फिर मैंने हर एक एलिमेंट को पुश कर दिया प्रायोरिटी क्यू के अंदर, फिर मेरा जब तक k है, मतलब आई हैव टू डू टू k स्टेप्स, तो मेरे जब तक k है मैंने किया ये प्रोसेस, मैंने पहला एलिमेंट निकाला विच इज द मैक्सिमम एलिमेंट, इट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया अपनी प्रायोरिटी क्यू से, फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट किया, वापस डाल दिया अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस करना था हमें। अपना आंसर आया, टेक लिया, आंसर ले लिया 0 हमने, बिकॉज हमने क्यों ये लॉन्ग हो सकता है, बिकॉज गिफ्ट जो था मेरा वो था 1E9, और ये नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हो सकते हैं 1000,
तो 199 into 1000 which can go beyond int limit, इसलिए अपना लॉन्ग लॉन्ग होगा आंसर। यहां पे LL where it is वो मैंने डिफाइन कर रखा है ऊपर लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। अब ये जब तक पैटी को एम्प्टी नहीं होता, मैंने हर एलिमेंट निकाला विच इज द टॉप, आंसर में ऐड किया, उसको हटा दिया बिकॉज अगली बार निकालूंगा तो काम आएगा, काम नहीं आएगा, और बस करते करते सारे एलिमेंट्स ऐड कर लिए, हो गया आंसर, ठीक है। इट इज द क्वेश्चन नंबर 1 which was it should take gift from the richest pile. Now let's go to question number 2. Count vowels, vowel strings in ranges. So हमें ये पता चला कि first question was of priority queue, max heap to be in general. Now let's see this one. Count vowels in ranges. So let's go to our sheet. तो इसके अंदर क्या है, अपना गिवन है, लेट्स सी द क्वेश्चन एक साथ। जब क्वेश्चन पढ़े ना तो लाइक बेस्ट है कि साइड बाय साइड एग्जांपल पैरेलल देखते जाओ, एग्जांपल भी क्वेश्चन भी। तो हमें एक जीरो इंडेक्स एरे गिवन है विच इज वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स एरे दे रखी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एंड अ 2D एरे ऑफ क्वेरीज, क्वेरीज की एरे दे रखी है, बहुत बढ़िया। ईच क्वेरी विच इज क्वेरीज ऑफ आई, इट इज LI, RI, मतलब ये जो है ये LI, RI है, ठीक है। आस्क अस टू फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द रेंज LI to RI। इस LI to RI का मतलब ये है कि हमें इस रेंज में LI to RI, मतलब LI plus 1 करते करते RI minus 1 to RI, ऐसे देखना है, बोथ इंक्लूसिव, मतलब LI और RI दोनों इंक्लूडेड हैं, ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ वॉवल, ठीक है। रिटर्न एन एरे आंसर ऑफ साइज क्वेरीज डॉट लेंथ, ठीक है, वेयर आंसर ऑफ आई इज द आंसर ऑफ द ith क्वेरी। मतलब एक तरीके से मुझे हर एक क्वेरी को इवैल्यूएट करना और फिर वही रिटर्न करना है, हर एक क्वेरी का आंसर, मतलब LI से RI को इवैल्यूएट करना है, बताऊंगा क्या होता है इवैल्यूएट, और फिर उसको हमें वापस करना है एज एन आंसर, मतलब वेक्टर ऑफ इंटीजर्स करके। ऐसे बता रखा कि वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, अगर बचपन में ना पढ़ा हो तो पढ़ा होगा ऐसे। तो अब हम देखते हैं कि क्या करना क्या है इसमें। इसका जो मेन काम है वो इस लाइन में लिखा था, हर एक क्वेरी का मतलब क्या है। अगर मेरा LI से RI आ रहा है, मतलब 0 से 2 आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स, तो मुझे अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4, ठीक, तो अब मुझे 0 से 2 इस सब एरे के अंदर, इस पूरे इस क्वेरी के अंदर, इस सेगमेंट के अंदर मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन दिस रेंज। इसमें कितनी स्ट्रिंग्स हैं इस समय, 3, 0 1 लिख लेते हैं, ABA, BCB और ECE, ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। मुझे बताना है कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ वॉवल। ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हैं इसके अंदर जो स्टार्ट भी कर रही हैं और एंड भी कर रही हैं वॉवल के अंदर। ये स्टार्ट कर रही है वॉवल के अंदर, एंड कर रही है वॉवल के अंदर, हाँ ये सही है। ये वॉवल से स्टार्ट नहीं कर रही है, एंड भी नहीं कर रही है, स्टार्ट नहीं कर रही तो मतलब ही नहीं एंड देखने का, गलत है। स्टार्ट भी कर रही है, एंड भी कर रही है, सही है। तो इस 0 से 2 के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स थी जो एक्चुअली में ये सेटिस्फाई कर रही हैं कि मेरा नंबर ऑफ that word it should start and end with a vowel, it is 2। तो इसलिए queries of 0,2 इसका आंसर है 2 which you can see here, यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं 1 से 4। अभी हमें पता चला कि ये चीज कर रही है सेटिस्फाई, ये नहीं कर रही, ये कर रही है, ये भी कर रही है, A और A स्टार्ट, A एंड, E खुद E स्टार्ट खुद ही वर्ड है, एंड भी E से ही हो रहा है, तो वो चीज क्या है अपनी, कर रही है सेटिस्फाई, ठीक है। तो अब उसने पूछा कि 1 से 4 में बताओ कितनी है। अब मैं 1 से 4 में गया, ठीक है भाई, 1 से 4 कितनी दिख रही है, 1 2 और 3, तो उसका आंसर 3 होना चाहिए, विच इज दिस 3, सही बात है। इसने पूछा 1 से 1, 1 से 1 मतलब ये वाला 1 से 1, इसके अंदर तो भाई एक भी नहीं है, तो 0 होना चाहिए आंसर, हाँ भाई 0 ही है। अब हमें पता चल गया कि मुझे क्या करना है, ठीक, मुझे क्या करना है कि मेरे पास आई विल गो टू एवरी क्वेरी, विच मीन्स कि मैं हर एक क्वेरी पे जाऊंगा, ऐसे मैं इस पहली क्वेरी पे गया, मैं देखूंगा कि इस सेगमेंट के अंदर, विच मीन्स 0 से 2 के अंदर, इस एरे में कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्ट और एंड वॉवल है, ठीक।
मैं फिर देखूंगा कि इस एरे में कितने हैं और मैं कर दूंगा रिटर्न। अब सॉल्व कैसे करें इसे? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि इस क्वेरी पे जाऊं, हर एक क्वेरी पे ट्रेड करूं और फिर एल आई से आर आई पे हर एक वर्ड पे ट्रेड करूं, मतलब वर्ड्स एरे के अंदर एल आई से आर आई मूव करूं फिर चेक करूं? क्या मैं कर सकता हूं? लेट्स सी, मतलब ये तो कंस्ट्रेंट्स ही बताएंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो लेट्स सी कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो जो मेरा क्वेरीज है ये, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? इसकी लेंथ हो सकती है 1E5। क्वेरीज ही इतनी लंबी हो सकती हैं, डाइम। ठीक है चलो अब वर्ड्स देखते हैं। वर्ड्स, ये वर्ड्स की लेंथ हो सकती है 1E5। ओके, एल आई और आर आई ये वर्ड्स लेंथ बराबर हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर इसमें 1E5 क्वेरीज हैं, लेट्स से ये क्वेरीज हैं, ऐसे करके करते करते जा रही हैं एंड तक। अगर एक क्वेरी के अंदर कोई ऐसा आया जहां पे उसने मुझसे बोल दिया कि 0 से 1E5 तक चेक करो, फिर इसने बोल दिया कि मुझसे 5 से 1E4 तक चेक करो, फिर इसने बोल दिया कि 4 से 1E3 तक चेक करो। तो यार मतलब अगर मैं हर एक क्वेरी पे ट्रेड करूं, फिर ऐसे में हर एक इंडेक्स पे ट्रेड करूं, तो फिर तो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ क्वेरीज, लेट्स से इट इज O of Q, Q इज नंबर ऑफ क्वेरीज एंड विच इज N नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर, जो नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर लेट्स से मान ली कि N वर्ड्स हैं, पर N भाई O of Q into N विच मीन्स 1E5 into 1E5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकता इसको। तो क्या करूं ऐसा मैं कि मुझे जाना ही ना पड़े? देखो इस क्वेश्चन एज हम देखा कंस्ट्रेंट्स क्या है इसके, कोई मेरे जो नंबर ऑफ क्वेरीज हैं वो 1E5 है, जो मेरा वर्ड्स की लेंथ है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी 1E5 है। तो इसका मतलब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी एट मैक्स कितनी हो सकती है? एन स्क्वायर तो नहीं हो सकती, मतलब Q into N तो नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है N log N या फिर Q log N या फिर मतलब बेसिकली 1E5 into log 1E5। इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता ना कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मतलब मुझे कुछ ऐसा सोचना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी Q log N, N log N, Q log Q ऐसा कुछ हो जाए। बात समझ रहे हो ना मेरी? बट एक बात और है कि मुझे हर एक क्वेरी पे ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना ही हर एक क्वेरी के लिए आंसर है। तो मुझे हर एक क्वेरी के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भाई बता तेरा आंसर क्या है, बिकॉज मुझे वही आंसर भेजना है अपने फाइनल रिजल्ट में, मुझे वही आंसर भेजना है बिकॉज मेरी आंसर की लेंथ भी उस क्वेरी की लेंथ के बराबर होगी। तो मुझे हर एक क्वेरी पे जाना तो पड़ेगा ही। हाँ बात तो सही है, हर एक क्वेरी पे भी जाना है। ठीक है, तो मतलब क्यू तो आएगा ही कॉम्प्लेक्सिटी में। तो मुझे ऑप्टिमाइज करना क्या है? मुझे ऑप्टिमाइज ये करना है कि हर एक क्वेरी पे मैं गया अगर और उस क्वेरी ने मुझसे बोला आर्यन एल आई से आर आई के बीच का आंसर लाके दे दे, तो मैं उस आंसर को O ऑफ log n या फिर O ऑफ 1 में लाके दे दूं, अगर मेरा काम हो गया। बात समझे ना? हर एक क्वेरी पे तो जाना पड़ेगा ही मुझे, बट हर एक क्वेरी पे जब मैं जाऊंगा तो मुझसे पूछूंगा भाई मुझे एल आई से आर आई का आंसर दे दे। अगर उसने मुझे वो आंसर O ऑफ log n या फिर O ऑफ 1 में दे दिया तो मेरे तो बल्ले बल्ले। अब मेरा मेन काम क्या है? अब मेरा मेन काम है मुझे एल आई से आर आई, एल आई से आर आई के बीच का आंसर लाना है, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज कि एल आई से आर आई, एल आई से आर आई के बीच का आंसर अगर मुझे पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ ऐसे वर्ड्स हैं विच कैन हैव, मतलब उनका स्टार्टिंग और एंडिंग वॉवल्स है, उससे पहले लेट्स गो एक स्टेप पीछे। मतलब अब मेरे पास वर्ड्स आ रहे हैं विच इज दिस, इसमें ये एक पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड है। मेरा मेन काम क्या है? मुझे कुछ भी कोई दे दे एल आई से आर आई, तो मुझे पता लगाना है ऐसे कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर। लेट्स से एल आई से आर आई ये है, जहां पे ऐसे कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर जहां पे व्हाट विल हैपन इज कि वॉवल्स, मतलब कोई स्टार्टिंग और एंडिंग वो वॉवल हो, इसको हटा देते हैं पहले, स्टार्टिंग और एंडिंग वॉवल हो ये सब बकवास है, बोल देते हैं कि उसका काउंट 1 है 0 ऐसे कुछ करके। तो हम पहले क्या करेंगे, एक इटरेट मार लेते हैं इस पूरी एरे के अंदर,
बोल दूंगा वर्ड्स प्रो मैक्स करके, ऐसे करके वर्ड्स प्रो। अब इसके अंदर मैं ये स्टोर कर लूंगा कि ये वर्ड वैलिड वर्ड है या नहीं। व्हेन आई से वैलिड वर्ड मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग वॉवल है या नहीं। ये तुम आराम से कर सकते हो ओ ऑफ एन के अंदर। तुम बस एक अलग से फॉर लूप लगाओगे जहां तुम हर एक वर्ड पे जाओगे और देखोगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग वॉवल है, ठीक है, ये 1 हो गया, ये है, नहीं है, 0 हो गया, ये है, हाँ भैया है, 1 हो गया, ये है, हाँ भैया है, 1 हो गया। तो अब मेरे पास एक वर्ड्स प्रो एरे बन गई, लेट्स से मान लिया वर्ड्स प्रो एरे नाम है, जहां पे मेरे पास हर एक पता चल गया कि ठीक है भाई ये 1 है, मतलब ये मेरा है, मतलब अच्छा 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 वाला वर्ड है, ये बुरा वाला वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, ऐसे मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या पता लगाना है कि एल से आर के बीच में ऐसे कितने अच्छे वर्ड्स हैं। मतलब इनडायरेक्टली मुझे ये पता लगाना है कि एल से आर का जो ये वर्ड्स प्रो एरे बनी है मेरे पास, इसका क्या है सम। कुछ याद आया? कुछ याद आया? अगर मुझे एल से आर एक सब एरे का सम पता लगाना है, क्या होती है एल्गोरिथम? प्रीफिक्स सम। अगर नहीं पढ़ी तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस, बट ये बहुत स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है कि तुम्हें कोई एल से आर की रेंज का सम पता लगाना हो तो तुम ओ ऑफ 1 में पता लगा सकते हो। कैसे? इसका नाम होता है प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम एक एल्गोरिथम है बाय विच हम क्या करेंगे कि इस एरे को मैं एक स्टोर करूंगा एज ए प्रीफिक्स सम एरे। मतलब क्या होता है, इसका नाम दिया मैंने प्रीफिक्स सम, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स सम में मतलब ऐसे मानते हैं कि मेरे पास ये प्रीफिक्स सम है, तो मतलब वी स्टार्ट विद लेट्स से इसका इंडेक्स मान लिया 1 2 3 4। आई एम डूइंग इंडेक्सिंग बाय 1, ध्यान रखना इसको, बिकॉज बताऊंगा क्यों करूंगा मैं। तो मैंने स्टार्ट किया यहां से इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो 0 इनिशियली 0 है, मतलब ये चीज यहां से बात ही नहीं कर रहे हैं इससे पहले, ये हमने डिफॉल्ट बनाई अपनी एरे ऐसी है प्रीफिक्स सम की। 1 से शुरू हुआ तो मैंने क्या किया, ठीक है, प्रीफिक्स सम मतलब प्रीफिक्स पहले, सम मतलब पूरा सम, इसके पहले कितना सम है वो होगा प्रीफिक्स सम। इससे पहले कितना सम है? 1। इसके पहले कितना सम है? यहां से यहां तक कितना सम है? एक तो यार बहुत क्लटर हो गया। इसकी यहां से यहां तक कितना सम है? विच इज 1, ठीक, यहां डाल दिया 1। यहां से यहां तक कितना सम है? 2, यहां डाल दिया 2। यहां से यहां तक कितना सम है? 3, डाल दिया 3। अब किसी को अगर प्रीफिक्स सम पता है तो उसे पता चल गया होगा कि एल आई से आर आई के बीच में सम कैसे आ जाएगा। अगर ये किसी को पता नहीं चला कि ये बनी कैसे है एरे प्रीफिक्स सम की, तो उनके लिए बहुत सिंपल शॉर्ट तरीका है। प्रीफिक्स सम क्या होगा? प्रीफिक्स सम मतलब शो कर रहा है कि अभी तक मेरा सम कितना आया है, स्टार्टिंग से अभी तक कितना सम आया है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट आया 1 तो ऐड कर दिया मैंने पिछले नंबर में, बिकॉज एक एलिमेंट आ गया ना, एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया तो ऐड कर दिया। यहां पे एलिमेंट 0 था, ऐड किया पिछले एलिमेंट में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। ये एलिमेंट 1 था, ऐड किया पिछले एलिमेंट में, 2 हो गया। ये एलिमेंट 1 था, ऐड किया पिछले एलिमेंट में, 3 हो गया। ऐसे बन गई प्रीफिक्स सम एरे। अब अगर मुझे कोई बोले कि आर्यन एल आई से आर आई के बीच का सम निकल के दे दे, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं जाऊंगा आर आई पे, विच इज दिस, ये मेरा आर आई है, मैं गया एल आई पे, एल आई कौन सा है? दिस, ठीक। तो आर आई एल आई, अगर मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए सम, इतना सम, तो मुझे यहां तक का सम मेरे पास इस एरे के अंदर है। एक मिनट थोड़ा साफ कर दूं, एक मिनट, या दूसरा पेन ग्रीन, मेरा यहां तक का सम लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, यहां तक का सम यहां तक मिल जाएगा मुझे इस प्रीफिक्स सम के अंदर। मुझे क्या माइनस करना होगा इसमें से? यहां तक का सम, तो वही तो मेरे पास ये सम आएगा। समझे बात? अगर मुझे यहां सम मतलब 3 तक का प्रीफिक्स सम यहां मिल जाएगा एट 3, मुझे माइनस करना होगा 1 का, बिकॉज मुझे सम चाहिए एल आई से आर आई विच इज 2 to 3, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा 1 का। तो आई विल डू माइनस ऑफ 1 विच इज दिस। तो टू गेट माई सम ऑफ आर आई टू एल आई विल डू प्रीफिक्स सम ऑफ आर आई माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ एल आई -1। इसलिए यू शुड नो कि मैंने यहां पे 0 क्यों किया, मैंने इंडेक्सिंग 1 से क्यों करी, बिकॉज अगर 0 से होती तो फिर 0 -1 क्या होता? -1। अब तुम -1 इंडेक्स कैसे एक्सेस करते? या तो कुछ एचकेएस लगाते, कुछ ऐसा कुछ करते, बट बेटर टू बी सेफ इसको 1 से मान के चला, यहां से मेरे पास आ गया
LI से RI। तो अब क्या होगा, मैं इस प्रीफिक्स सम को बना लूंगा और हर एक इटरेशन के अंदर व्हाट आई विल डू इज कि ऐसे प्रीफिक्स ऑफ RI माइनस प्रीफिक्स ऑफ LI माइनस 1 करके O1 में मैं हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकालूंगा कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, बिकॉज यहां 1 0 और 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक अच्छी स्ट्रिंग है या नहीं, मतलब वर्ड प्रो है या नहीं। बट आगे मेरा आंसर समझे। तो अब ऐसे ही हर एक LI RI के लिए मैं प्रीफिक्स ऑफ RI माइनस प्रीफिक्स ऑफ LI माइनस 1 करके हर एक क्वेरी के लिए आंसर निकाल लूंगा, एंड इट विल बी इन O1 बिकॉज मैंने प्रीफिक्स पहले ही प्री कंप्यूट कर ली। एक तरीके से मैं हर एक क्वेरी पे प्री कंप्यूट नहीं कर रहा, मैंने इसको पहले ही प्री कंप्यूट कर लिया और ये मुझे हर एक उस पर बता देगा कि LI से RI क्या आंसर है मेरा। ठीक, लेट्स सी द कोड क्विकली। 25, I'm spending way too much time. But yeah, you are given a zero index array. Let's see the code. इसके अंदर what I will do is कि ये तो एक फंक्शन है, वो बताएगा कि वो जो स्ट्रिंग है क्या वो वॉवल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। इसका मतलब उसका स्टार्टिंग एलिमेंट वॉवल होना चाहिए एंड आखिरी एलिमेंट वॉवल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वेल एंड गुड, इट इज अ मेरा गुड वर्ड। ठीक है, एल्स इट्स नॉट। अब मैं हर एक वर्ड पे गया, ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने चेक कर लिया अगर वो हर एक वर्ड वॉवल है तो मैंने अपनी दूसरी एरे बनाई जो मैंने बताया था ना, वर्ड्स प्रो एरे। यहाँ पे वर्ड्स प्रो एरे जो बताई थी मैंने, वो यहाँ पे मेरी V1 है। ठीक, अब मैंने एक एरे बना ली डीपी, मतलब ये इट्स अ प्रीफिक्स सम एरे, नाम दे दिया मैंने डीपी। इट्स मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, यू कैन जस्ट नेम इट, इट इज अ प्रीफिक्स सम एरे। इस प्रीफिक्स सम एरे को, एंड इस पे मत जाना कि n+2 n+3, मतलब आई जस्ट गो वे बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ n सो एज जल्दी जल्दी करने के लिए कोड। फिर मैं गया हर एक एलिमेंट पे, मैंने इसका स्टोर किया प्रीफिक्स सम। तो यहां पे वी आर स्टोरिंग प्रीफिक्स सम, राइट, यहां पे वी आर स्टोरिंग प्रीफिक्स सम, मैंने यहां पे स्टोर कर दिया प्रीफिक्स सम। ठीक है, फिर मैंने आंसर देखा क्या मेरा, बिकॉज ये आंसर मैं करूंगा रिटर्न। मैं हर एक क्वेरी पे गया, मैंने हर एक क्वेरी का स्टार्टिंग और एंडिंग देखा, मतलब ये है L, ये है R, ठीक है, ये है अपना LI और ये है अपना RI। ठीक है, मैं हर एक उस पे गया LI RI, फिर मैंने पुश कर दिया DP ऑफ, मतलब DP इन द सेंस मेरा प्रीफिक्स सम ऑफ R विच इज E इन दिस केस, एंड ये मैंने स्टार्ट और एंड मान लिया मैंने उस जो मैंने क्वेरी ली है स्टार्ट और एंड। तो मैंने पुश किया प्रीफिक्स सम ऑफ एंड माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ स्टार्ट -1। ठीक, फिर मैंने आंसर कर दिया रिटर्न यहां से। I guess you guys got it. Now let's go on to the next question. I know I'm taking way too much time to explain, but if you want to skip to any part, you can just skip out. मतलब I will mark the timestamps of every part, but still you can just skip out every part whatsoever you want. The question is house robber 4. So इसके अंदर क्या करना है हमें? Let's see. तो अब इसके अंदर we have several consecutive house as standard example और question साथ लेके चलेंगे। We have several consecutive house along a street, each of which has money inside. And हर एक house है street में और उसके अंदर money भी है। And we have a robber who wants to steal from homes, but he refuses to steal from adjacent homes. तो एक रॉबर है जो मनी स्टील करेगा उन घर से, और हर घर में मनी रखा है, एंड उसको एडजेसेंट घर से पैसा नहीं चुराना है। शॉक, बड़ी चीज है। The capability of the robber is the maximum amount of money he steals from one house of all the houses is robbed. एक कैपेबिलिटी वर्ड है जो डिफाइन करिए रॉबर की, वो होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ही स्टील्स। मतलब इफ अ रॉबर हैज, लेट्स से अगर वो रॉब करता है 5 हाउसेस, तो 5 में से जो मैक्सिमम उसने पैसा रॉब किया वो बताएगी उसकी क्या है कैपेबिलिटी रॉबर की। तो ये बताइए कि क्या होती है कैपेबिलिटी। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिप्रेजेंटिंग हाउ मच मनी इज स्टैश्ड इन ईच हाउस। नम्स के अंदर ये बता रखा है कि हर एक एरे के अंदर, मतलब जो एरे रखी है उसमें नम्स ये बता रही है कि हर एक घर पे कितना पैसा पड़ा है। तो ith हाउस के अंदर नम्साई डॉलर्स हैं, हम मांगे रुपीज हैं, नम्साई रुपीज हैं, डॉलर्स मान लेते हैं चलो। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे इंटीजर के
विच रिप्रेजेंट द मिनिमम नंबर ऑफ हाउसेज द रॉबर विल स्टील, मतलब उस रॉबर को के हाउसेज स्टील तो करने ही करने हैं, समझे, कि तो करेगा करेगा स्टील, ठीक है। इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू स्टील एटलीस्ट के हाउसेज, यानी ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि हाउसेज कम पड़ जाएंगे, अगर वो ऑल्टरनेट जाता भी है, मतलब वो एडजेसेंट नहीं चूज करेगा हाउसेज, मतलब वो उछलता भी कूदता जाता है दूसरे हाउसेज के पास, तो के तो स्टील कर ही लेगा, मतलब किसी भी केस में एक रॉबर के हाउसेस स्टील कर ही लेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके अंदर कि वो एडजेसेंट हाउसेस स्टील नहीं कर रहा है, ठीक ठीक। रिटर्न द मिनिमम कैपेबिलिटी ऑफ द रॉबर आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज टू स्टील एटलीस्ट के हाउसेस, तो मतलब वो रॉबर के हाउसेस स्टील करता है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसके पास वो के हाउसेस स्टील करने की, जितनी भी, उसमें से वो पॉसिबिलिटी बतानी है जहां पे उसकी मिनिमम कैपेबिलिटी हो। इसका मतलब व्हेन आई से मिनिमम कैपेबिलिटी हो, मतलब जो उसने उस इटरेशन के अंदर के हाउसेस स्टील करे उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब मैक्सिमम मनी जो उसने यहां से स्टील किया, इट शुड बी मिनिमम इन all the possible things, all the possible scenarios, iterations I should say, where he steal key houses। मतलब अगर उसने के हाउस, लेट्स से कोई एरे थी मेरे पास नम्स, उसमें लेट्स से 80 एलिमेंट थे, 80 हाउसेस थे, अब 80 हाउसेस थे, हाउस हर हाउस के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेट्स से मेरा के था 8, ठीक। तो अब मेरे पास एक एक पैटर्न ये बना कि अच्छा ठीक है मैंने ये हाउसेस चूज कर लिए, कुछ 8 हाउसेस, एक पैटर्न ये बना कि मैंने ये कुछ हाउसेस चूज कर लिए, लेट्स से मैंने मान लिया कि पैटर्न 1 है, ये मेरा पैटर्न 2 है, ये मेरा पैटर्न 3 है, पैटर्न 4, ऐसे करते करते बहुत सारे पैटर्न्स होंगे, ठीक। अब इसके अंदर लेट्स से इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट था, ये इसका मैक्सिमम एलिमेंट था, लेट्स से ये इसका नाम, मैं ये मैक्सिमम एलिमेंट था, लेट्स से इसकी वैल्यू थी 50, इसके मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू मान ली मैंने 30, इसके मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू मैंने मान ली 43, इसके मैक्सिमम एलिमेंट की वैल्यू मैंने वैल्यू मान ली कितनी 64 67। तो अब इनमें से आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज मिनिमम क्या है, which is 30, it is the minimum of all the maximum values which I can get, so ये होगा मेरा आंसर। लेट्स गो टू दिस एग्जांपल एक बार, अगर 2359 है, 2359, मुझे k इक्वल टू 2, मुझे 2 हाउसेस चोरी करने हैं, चोर मैं हूं, मुझे 2 हाउसेस चोरी करने हैं, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 और 5 चुरा लूं, ठीक है, मतलब यहां पे जो 2 है ये पैसा है इस हाउस के अंदर, तो मैं 2 और 5 चुरा लिया, दूसरी पॉसिबिलिटी है मैंने 3 और 9 चुरा लिया, एक तीसरी पॉसिबिलिटी है मैंने 2 और 9 चुरा लिया, और कुछ तो नहीं बनी पॉसिबिलिटी, ठीक। इसका जो होगा मैक्स, इसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो होगी 5, इसकी होगी 3, इसकी होगी 2, ठीक, सॉरी, इसकी होगी 5, इसकी होगी 9, इसकी होगी 9, बिकॉज वो मैक्सिमम होती है, एंड इसमें से मिनिमम क्या है, मिनिमम है 5, जो कि मैंने यहां पे देखा, तो मुझे यही करना है, मतलब मुझे कुछ भी करके ये देखना है कि मेरी मिनिमम कितनी हो सकती है कैपेबिलिटी, ठीक ठीक। एक बार कंस्ट्रेंट्स देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। जो मेरी नम्स एरे है, मतलब ये जो एरे, ये वाली एरे, इट कैन बी 1E5, ठीक है। जो मेरा के है, ठीक है, मतलब ये भी लगभग 1E5 की तुम लेंथ मान लो लगभग, बिकॉज इसने बताया ना कि अब तुम ऑल्टरनेट जा सकते हो, तो के कैन बी ऑल्टरनेट, मतलब के कैन बी नम जो 1E5 प्लस 1/2 विच इज 1E5 कॉम्प्लेक्सिटी हुई एक तरीके से, तो मेरा के भी इतना ही है, ठीक है। मेरा हर एक हाउस जा सकता है, मतलब हर एक हाउस के अंदर पैसेज जा सकता है 1E9 तक, ठीक है। अब मुझे क्या पता लगाना है, सिंपल बात करते हैं अपने आंसर से, मुझे क्या पता लगाना है, मुझे पता लगाना है मिनिमम कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, जो भी था वो क्या था, वो कैपेबिलिटी, हाँ कैपेबिलिटी, मिनिमम मुझे पता लगाना है कैपेबिलिटी क्या हो सकती है। तो यार अगर मैं ब्रूट फोर्स पे जाऊं कि ठीक है, मतलब क्या हो सकता है कि मैं हर एक ऑल्टरनेट देखूंगा, भाई वो तो एक्सपोनेंशियल जाएगा,
हर एक ब्रूट फोर्स वे पे जा ही नहीं सकता एक तरीके से, बिकॉज वो जाएगा एक्सपोनेंशियल। कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचते हैं वो ये निकाली मिनिमम कैपेबिलिटी। मिनिमम मतलब क्या क्या हो सकता है मिनिमम? अच्छा वैसे मैक्सिमम क्या हो सकता है? लेट्स से मुझे मिनिमम छोड़ो, मुझे मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो आंसर आएगा वो क्या हो सकता है आंसर? इट कैन बी 1E9। ठीक, मतलब लेट्स से अगर हर एक हाउस के अंदर 1E9 पैसा है तो उस रॉबर की मिनिमम क्या होगी? 1E9 होगी कैपेबिलिटी। ठीक, बिकॉज हर एक चाहे वो कितना ऑल्टरनेट ले ले ना ले, जो मर्जी आए किसी भी हाउस पे जाए, और हर एक हाउस ही 1E9 है, तो साफ सी बात है भाई 1E9 से कम पैसा उठा ही नहीं सकता, तो उसकी मिनिमम क्या हुई? 1E9 कैपेबिलिटी। ठीक है, ये इसकी आगे मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम क्या हो सकती है इसकी मिनिमम वैल्यू? अगर हर एक हाउस पे एक ही पैसा है, एक ही रुपया है, एक ही डॉलर है, तो क्या होगा? हर एक हाउस पे जाएगा एक उठाएगा डॉलर, चाहे वो किसी भी ऑल्टरनेट हाउस पे जाए उठाएगा तो एक ही डॉलर ना। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ कैपेबिलिटी को मुझे मिनिमाइज करना है, उसकी वैल्यू 1E9 मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। क्या करूं मैं ऐसा कि मैं इस लिमिट को मिनिमाइज कर सकूं? कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, बट कैसे? अगर मैं कोशिश करूं कि ठीक है मैंने कुछ भी एक एलिमेंट लिया, लेट्स से एक आर्बिट्री वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं हम, लेट्स से 1E4। अगर मैंने ये वैल्यू ली, और देखो मेरा क्या एम है, मेरा एम ये है कि मुझे ये पता है कि इसका मिनिमम ये हो सकता है, ये पता है मैक्सिमम ये हो सकता है, पता है ना ये बात तो मुझे, बस मुझे ये चीज को जो भी वैल्यू है उसको मुझे इसकी साइड लाना है, मिनिमम की साइड लाना है। कितना ला सकता हूं मैं? ठीक है, लेट्स से अगर कुछ भी आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं मैंने लिया 1E4, तो क्या 1E4 मेरा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मतलब क्या मैं 1E4 को अपने नम्स एरे में ला पाऊंगा? क्या एक रॉबर 1E4 एज अ कैपेबिलिटी ला सकता है? बेसिकली मेरा तो यही काम है। क्या ये 1E4, एक तरह से पूछूं अपने आप से मैं, क्या ये 1E4 एज अ कैपेबिलिटी हो सकती है इस रॉबर की? अगर ये बोलता है हां हो सकती है, हाँ यार हो सकती है, तो मतलब मैं और कम के ट्राई कर सकता हूं। 1E4 अगर इसने बोल दिया कि हाँ है, तो आई ट्राई फॉर लेट्स से 1E3 कम के लिए। बट अगर इसने बोल दिया 1E4 हो ही नहीं सकती हमारी कैपेबिलिटी, उखाड़ लूं क्या उखाड़ लो? जब 1E4 नहीं हो सकती तो कम भी नहीं हो सकती इससे, तो फिर तो कैपेबिलिटी ज्यादा ट्राई करनी पड़ेगी, लेट्स से 1E5। अगर मैंने किसी आर्बिट्री वैल्यू पे गया और मुझे देखना है कि यार ये कैपेबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती इस रॉबर की, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने एरे पे जाऊंगा जो कि मेरा नम्स एरे है, उसके अंदर एट एवरी एलिमेंट मैं चेक करूंगा। ठीक है, मैंने अब अगर मुझे ये कैपेबिलिटी चाहिए 1E4 चाहिए, तो मैं जो भी उठाऊंगा यहां से एलिमेंट्स, जो भी उठाऊंगा एलिमेंट्स, लेट्स से ये उठाया, लेट्स से थोड़ी एरे बड़ी बनाते हैं, ये लो। ठीक है, जो भी उठाए मैंने एलिमेंट्स, ध्यान रखना एक चीज उसके अंदर, वो एलिमेंट्स इससे 1E4, अब जब मैंने कहा कि 1E4 इसकी कैपेबिलिटी हो सकती नहीं हो सकती, मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? कि मैक्सिमम एलिमेंट कैपेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब जो भी एलिमेंट उठा रहा हूं मैं कितने भी उठा लूं इसमें से, इस नम्स में कितने भी उठा लूं मैं, बट मैक्सिमम 1E4 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, समझे? तो अगर मैंने ये उठाया तो एक कंडीशन ये है कि इसको 1E4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी एक एरे बना सकता हूं विच इज दिस पैटर्न 1। लेट्स से मैंने एक पैटर्न बनाया, पैटर्न 1, मैं एक एरे बना सकता हूं, एक पैटर्न 1 नाम दे दिया, लेट्स से उसको मैंने जब मैं ये चेक कर रहा हूं, अब मैं यहां पे उल्टा चल रहा हूं, मैं एक पैटर्न से कैपेबिलिटी नहीं बना रहा, एक कैपेबिलिटी से सोच रहा हूं कि एक पैटर्न बन सकता है या नहीं। ठीक, तो मैंने 1E4 लिया, लेट्स से मैंने उससे पूछा क्या ये कैपेबिलिटी हो सकती है इस एरे के अंदर? इसने बोला, लेट्स से इसने बोला हाँ या ना। हाँ या ना कैसे बोला?
ये गया हर एक एलिमेंट पे, उसने चेक करा, अच्छा ये एलिमेंट 1/4 से छोटा है तो आ सकता है, बट ऐसे नहीं, एडजेसेंट एलिमेंट भी देखना है, मतलब इससे पहला एलिमेंट नहीं आना चाहिए, जो मेरी पैटर्न एरे है इसके अंदर इससे पहला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं है तो ये एलिमेंट, लेट्स से मैंने मान लिया इसका नाम E2, तो ये E2 आ गया यहाँ पे। अब मैं इस पे गया, इस एलिमेंट पे, ये छोटा तो था 1/4 से, बट ये एडजेसेंट एलिमेंट आ चुका है इसके पीछे, तो यार ये तो नहीं आ सकता। लेट्स से मैं गया इस E4 पे, यार ये तो बड़ा है, लेट्स से ये एलिमेंट 1/4 से बड़ा है E4, तो यार ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब मैं इस पे गया, ये एलिमेंट 1/4 से छोटा है लेट्स से, बट इसके पीछे वाला एलिमेंट नहीं आया, तो ये एलिमेंट भी आ सकता है, लेट्स से इसका नाम दे दिया E5। ऐसे करते 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 मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ सकते हैं, ये कंडीशन रख के कि मेरी कैपेबिलिटी 1/4 है, मैंने डाल दिया पैटर्न के अंदर। और इस पैटर्न की अगर लेंथ K से बड़ी है, मतलब मैं ऐसे K हाउसेस को चोरी कर सकता हूं, बिकॉज ये कंडीशन थी मेरी कि मुझे हाउसेस जो है K वो चोरी करने हैं, तो अगर मैं इन K हाउसेस को चोरी कर सकता हूं, या अगर ये ज्यादा भी है तो फर्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज मैं उनको छोड़ दूंगा, सिंपल है ना, छोड़ सकता हूं, बिकॉज मैक्सिमम तो 1/4 था, उतना तो आ गया ना, मतलब उससे छोटे एलिमेंट है सारे, तो मतलब अगर ऐसे एक पैटर्न बन गया जहां पे मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो K उससे ज्यादा है, मतलब इस कैपेबिलिटी के लिए 1/4 कैपेबिलिटी के लिए मेरे पास पैटर्न तो है, मतलब मैं और रिस्क ले सकता हूं। अब मैं और रिस्क का मतलब क्या है, 1/4 तो आ गया ना, बड़ा तो है ही, लेट्स ट्राई और छोटा, मतलब 1/4 आ गया, अब मुझे मिनिमाइज करनी है कैपेबिलिटी, तो लेट्स रिस्क एंड लेट्स गो छोटा देन 1/4। कुछ याद आया क्या होता है ये? लेट्स स्टार्ट कि हमने स्टार्ट किया मिन मैक्स से, हमने स्टार्ट किया कि मिनिमम मैक्सिमम लिया, फिर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि यार ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इससे कोई पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा, समझे, इससे कोई पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो ठीक है। अब लेट्स मूव टू अ स्मॉलर आंसर, कुछ और ट्राई करते हैं, ये कहते हैं बाइनरी सर्च। दिस क्वेश्चन ऑफ बाइनरी सर्च, हमने स्टार्टिंग में बात ही नहीं करी कि क्वेश्चन बाइनरी सर्च का है, हमने एक पैटर्न बिल्ड करा, उससे हमें पता चला कि क्यों हम पैटर्न से के नहीं निकाल सकते, हम पैटर्न से मिनिमम कैपेबिलिटी नहीं निकाल सकते, बट एक मिनिमम कैपेबिलिटी को चूज करके कि हाँ लेट्स से मिनिमम कैपेबिलिटी इज एक्स विच वाज 1/4 इन आवर केस, हमने चेक किया कि क्या 1/4 लेके एज अ मिनिमम कैपेबिलिटी क्या कोई पैटर्न बन सकता है, अगर हां मतलब 1/4 पॉसिबल है तो लेट्स ट्राई छोटा इससे, बस वही किया हमने। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि तुम एक एल लेते हो, तुम एक आर लेते हो, फिर तुम एक मिड निकालते हो, वो मिड कंडीशन सेटिस्फाई करता है कुछ भी, मान दिया वो इस वैलिड रिटर्न करेगा, इस वैलिड इस केस में ये है कि मुझे इस पूरी एरे के अंदर कुछ भी ऐसे करके करना है कि मुझे इस पूरी एरे के अंदर which is this, मुझे जाना है हर एक एलिमेंट पे, मुझे पूछना है भाई तुम्हारी वैल्यू 1/4 छोटी है ना, एंड आपसे पहले कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया ना जो मैंने ले लिया हो, हाँ भैया छोटी भी है, कोई पहले एलिमेंट आया भी नहीं है तो ले लिया, आपको नहीं ले पाएंगे बिकॉज आपके पीछे आ चुका है बंदा, आपको ले या ना ले आपकी वैल्यू छोटी है 1/4 से, आपको ले लिया, आपको नहीं ले सकते बिकॉज आपके आस पास आ चुका है, आपकी वैल्यू लेट्स से बड़ी है 1/4 से, लेट्स से इट इज 1/5, तो आपको भी नहीं ले सकते, आप वैलिड ही नहीं हो, आपको लिया आपको नहीं ले सकते, आपको लिया आपको नहीं ले सकते, 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 आपको लिया, ऐसे करके ये एलिमेंट आ गए। अब बस ये देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है मेरे पास क्या वो के से बड़े हैं, मतलब इतने में एलिमेंट इकट्ठा कर भी पा रहा हूं क्या जो मैं के हाउस को रॉब कर सकूं, अगर हां मतलब जो मैंने अपना मिड निकाला था वो वैलिड है, बस यही होती है बाइनरी सर्च, जहां पे तुम एल से आर जाते हो, फिर तुम मिड चेक करते हो कि ये कंडीशन वैलिड सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, करेगा ठीक है, तो अब मैं कुछ और छोटा ट्राई करूंगा, मैं कुछ और रिस्की ट्राई करूंगा, और रिस्की क्या है, और मिनिमम, हमेशा और रिस्की ट्राई करते हैं हम, हमारा मिड आ गया अच्छी बात है, हम और रिस्की ट्राई करेंगे, मिड नहीं आ पाया हम तो लाइट जाएंगे, हम और मैक्सिमम ट्राई करेंगे, ठीक है। हमेशा जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम और रिस्की ट्राई करते हैं बाइनरी सर्च के अंदर, रिस्की मींस और कॉम्पैक्ट और मिनिमम,
राइट हमारे केस में हमें मिनिमम करना था, तो हम और मिनिमम तरफ जा रहे हैं, और मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। अगर हमें मैक्सिमाइज करना होता तो हम और रिस्की मतलब होता हमारा मैक्सिमाइज करना, बट इस केस में रिस्की का मतलब है और मिनिमाइज करना। तो कंडीशन वैलिड हो जाती है मेरी मिड की, तो मैं और रिस्की ट्राई करूंगा, विच मींस मैं और मिनिमम ट्राई करूंगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा और लिबरेट होऊंगा, तो मैं और लूज करूंगा, मैं और मैक्सिमम ट्राई करूंगा, जस्ट दिस। ठीक, अब नाउ यू नो क्या लॉजिक है। लेट्स ट्राई कोडिंग, एक बार खुद कोड करना, बट नहीं है तो आई विल शो यू द कोड। देखो, हाउस रॉबर 4, यहां पे लेट्स सी द कोड। देखो ये कंडीशन है वैलिड, आएंगे वहां पे क्या है, पहले तो एन ले लिया विच इज नम्स ऑफ साइज, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लो और बड़ा, पहले एन ले लिया विच इज नम्स ऑफ साइज, ये लो और बड़ा कर दिया, एन ले लिया विच इज नम्स ऑफ साइज। फिर मैंने एल और आर ले लिया, मैंने बताया था ना एल इज मिनिमम विच इज 1, आर इज मैक्सिमम विच इज 1E9। फिर मैंने इटरेट किया वाइल एल इज लेस देन आर, फिर मैंने लिया मिड, मैंने कहा ना कि इसमें क्या होगा, एल लिया आर लिया, अब मैं मिड चेक करूंगा। बाइनरी सर्च के अंदर यही होता है। अब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी, बताओ 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 बताओ। अब मैंने क्या किया, मैंने लिमिट ली है, अब मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूं इस पे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक। एंड देन आई एम इटरेटिंग ऑन व्हाट, ऑन माय कंडीशन नम्स। तो इट इज एन विच इज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। मैं हर एक एन पे जा रहा हूं, बट मैं मिड मिड किस पे मार रहा हूं, इस कंडीशन पे 1 से 1E9 के बीच में, तो इट इज एन लॉग 1E9। 1E9 इज अराउंड 30ish, 29.63 ऐसे कुछ बैठेगा। तो इट इज एन इंटू लॉग, नॉट एन, लॉग 1E9। इस केस में आई शुड से लॉग ऑफ नम्स ऑफ आई, मैक्स ऑफ नम्स ऑफ आई तरीके से, बट इन अदर सेंस वी कैन सी एन लॉग एन काइंड ऑफ, बट इट इज नॉट ऑफ एन लॉग एन, इट इज एन इंटू लॉग ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ये लूप करेगा लॉग एन टाइम्स, लॉग 1E9 टाइम्स, बिकॉज हर स्टेप पे आधा 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 होता जाएगा, और ये कहां स्टार्ट हो रहा है 1E9 से, इसीलिए। ठीक, तो मैंने मिड निकाला विच इज एल प्लस आर बाई 2, मैंने चेक किया कि ये वैलिड है नहीं। व्हेन आई से वैलिड, वैलिड का मतलब होता है कि मैं हर एक एलिमेंट पे इटरेट करूंगा, मैं पूछूंगा कि भैया आपकी वैल्यू छोटी है ना मेरे मिड से, बिकॉज मैं ना 1E4 अपने एग्जांपल में हम लिया था, 1E4 मेरा मिड है, तो हर एक एलिमेंट छोटा होना चाहिए उससे, बड़ा हुआ तो मेरी मैक्सिमम हो जाएगी वो वैल्यू, मतलब वो जो मेरी मिड है वो फिर वो नहीं रहेगा, फिर वो उस मैक्सिमम को ले लेगा। तो मैं हर एक एलिमेंट जो ले रहा हूं मैं अपने एरे के अंदर, वो छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई, छोटा हो आप, बहुत अच्छी बात है, आप छोटे हो तो अच्छी बात है, मतलब मैं आपसे अगला एलिमेंट तो नहीं ले सकता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया। अगर मैंने आपको ले लिया मतलब आपका अगला एलिमेंट नहीं ले पाऊंगा, तो मैं आपसे अगले से अगले एलिमेंट पे जाऊंगा। ठीक, यहां पे मैंने काउंट कर लिया ताकि मैं बाद में ये चेक कर सकूं कि ये जो मैंने बनाया है, मतलब मैंने जो एलिमेंट चूज किए हैं, क्या ये के बराबर है, मतलब के या फिर के से ज्यादा है या नहीं। अगर के से ज्यादा है ही नहीं, मतलब मैं ले ही नहीं सकता, मतलब मैं के हाउस को रॉब कर ही नहीं सकता, पर मुझे हाउस तो के रॉब करने हैं। तो ठीक है, मैंने लास्ट में चेक किया कि क्या मेरे हाउसेस के हाउस से बड़े हैं, साफ सी बात है, अगर हैं तो भैया सही है, ट्रू रिटर्न करो, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करो। तो ये चेक करेगा कि मेरा मिड वैलिड है या नहीं। अगर मेरा मिड वैलिड है तो मैं ट्राई करूंगा और छोटे के लिए, अगर मेरा मिड वैलिड है तो मैंने ट्राई किया और छोटी रेंज के लिए। पहले रेंज थी मेरी एल आर, अब मैं आर को लिया है मिड पे, अब मेरी रेंज हो गई है। ठीक, अगर नहीं ऐसा तो मैंने ट्राई किया एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, पहले मेरी रेंज थी एल आर, बट मिड सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं अपने एल को उठा के लिया है आगे, अब मेरी रेंज हो गई बड़ी। तो बस ये करना है इसके अंदर, लास्ट में रिटर्न कर देंगे एल, एल कर दो आर रिटर्न कर दो, बात सेम ही है बिकॉज एल और आर सेम होते हैं। सो ये क्वेश्चन था अपना बाइनरी सर्च के ऊपर, इंटरेस्टिंग राइट। पहले प्रायोरिटी क्यू, दूसरा क्वेश्चन प्रीफिक्स सम्स, तीसरा बाइनरी सर्च, सुपर अमेजिंग। लेट्स सी अगला क्वेश्चन, रीअरेंजिंग फ्रूट्स। सो एज यूजुअल गोइंग टू दी स्टैंडर्ड, सांस मेरा गला सूख गया, बट स्टिल I've gone pretty bad. हाँ, मतलब बहुत लंबा हो गया, बट स्टिल लेट्स ट्राई रीअरेंजिंग फ्रूट्स। इसके अंदर अपने पास दो फ्रूट बास्केट हैं जिसके अंदर हर एक के अंदर n फ्रूट्स हैं।
बहुत बढ़िया। हमें दो जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे गिवन है, बास्केट 1 और बास्केट 2, ठीक है। मतलब हर बास्केट में फ्रूट है, एन फ्रूट मान लिया, रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स इन ईच बास्केट, ठीक है। बास्केट 1 में कुछ फ्रूट्स हैं जिसकी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। यू वांट टू मेक बोथ द बास्केट्स इक्वल, मतलब मान लो कुछ वैल्यूज है बास्केट 1 में, बास्केट 2 में, अब मुझे इनडायरेक्टली वो वैल्यूज इक्वल करनी है, सो दैट यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑपरेशन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, ठीक है। मुझे आई और जे चूज करना है, बास्केट 1 से आई चूज किया, बास्केट 2 से जे चूज किया और इनको स्वैप कर दिया, और उस स्वैप की कॉस्ट होगी मिनिमम ऑफ बास्केट 1 ऑफ आई कॉमा बास्केट 2 ऑफ जे। मैंने बास्केट 1 से उठाया एक एलिमेंट आई, बास्केट 2 से उठाया एलिमेंट जे और कर दिया इसको स्वैप। स्वैप की कॉस्ट है मेरी मिनिमम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ठीक। अब अगर ये मेरी स्वैप की कॉस्ट है और मुझे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट टू मेक बोथ द बास्केट्स इक्वल। और बास्केट इक्वल करने की डेफिनेशन क्या है, बास्केट्स आर कंसीडर इक्वल इफ सॉर्टिंग देम अकॉर्डिंग टू द फ्रूट्स मेक देम एग्जैक्टली द सेम। मतलब मुझे हर एक पोजीशन सेम नहीं करनी है, बस मुझे बास्केट 1 में जो एलिमेंट्स हैं वो ही एलिमेंट्स बास्केट 2 में होने चाहिए एक तरीके से। इसका मतलब ये हुआ सॉर्ट करके एलिमेंट्स तो एक साथ आ जाएंगे ना, बस तो वो सेम होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बास्केट 1 ऑफ आई शुड बी इक्वल टू बास्केट 2 ऑफ जे, बास्केट 2 ऑफ आई, सॉरी, ये इक्वल होना जरूरी नहीं है। बस ये कि बास्केट 1 के सारे एलिमेंट्स और बास्केट 2 के सारे एलिमेंट्स, जो यहां पर एलिमेंट्स है बास्केट 1 के अंदर, वो एलिमेंट बास्केट 2 में हो, बस ऐसा होना चाहिए, ठीक। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे बताना है कि इसमें मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगी, समझे मेरी बात को? लगता इजी रहा होगा, ये है भी इजी। मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट, और अगर पॉसिबल ही नहीं तो माइनस में रिटर्न करो। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स हैं 4 2 2 2, बस मेरे सिर तो नहीं आ रहा ना, मुझे ये डर है मेरा सिर ना आ जाए, बस 1 4 1 2। तो यार पहले एक चीज देखें हम, एक चीज, जो एलिमेंट दोनों एरे के अंदर हैं उनको मैं देखूं ही क्यों? मुझे पहले ये बताओ। साफ सी बात है, जो एलिमेंट यहां भी है और यहां भी है, अल्टीमेटली यहां भी रहेगा वहां भी रहेगा ना, तो मुझे उसको देखना ही नहीं है। हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ। अब एलिमेंट बचे ये दोनों और ये, ठीक। अब अगर मुझे ये पता लगाना है कि पहली चीज, पहले देखते हैं कि पता कैसे लगाएंगे कि भाई पॉसिबल है या नहीं। अगर मैंने ये हटा दिए, अब बचा क्या मेरे पास 2 2 और यहां बचा 1 1, एक तरीके से ये बचा, ठीक। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं कुछ करके स्वैप कर सकता हूं, तो यार साफ सी बात है हाँ। क्यों? अगर यहां पे मेरे पास 2 2 है तो मैं यहां पे 2 भेज दूंगा एक, यहां पे 2 आ जाएगा, तो यहां पे एक 2 हो गया, यहां पे एक 2 हो गया, यहां पे 1 है तो मैं यहां पे 1 भेज दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 1, तो यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो यहां पे 1 आ, यहां पे 1 आ गया। तो मतलब इससे ये पता चला कि जब मैं, लेट्स से इसको ले लेते हैं अब, 2 3 4 1 और 3 2 5 1। अगर मैं हटा दूं सेम सेम एलिमेंट्स, सेम 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 गए, सेम 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 गए, इसका मतलब ही नहीं है, ये जो सेम पहले ही है। 4 यहां पर है, अगर मैं चाहता कि वहां भी 4 हो तो यहां पे जितने 4 हैं वहां पे भी उतने ही 4 जाते। साफ सी बात है ना, मतलब ये जो 4 है ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए था, बात समझे? अगर ये नहीं है, अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो मतलब वहां पे भी उतने ही 4 जाएंगे जितने यहां पर हैं, और हमें पता है कि वहां पे कोई 4 है ही नहीं, बिकॉज अगर होता तो हम पहले उसको यहां से काट चुके होते। यहां पे तो 4 है, बास्केट 1 में 4 है, बास्केट 2 में 4 नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो हम पहले किसी बास्केट 1 के 4 से काट चुके होते थे, ऐसे काट चुके होते, ठीक है। बास्केट 1 में 4 है, बास्केट 2 में 4 नहीं है, बहुत बढ़िया। बास्केट 1 से बास्केट 2 में मैं 4 डाल सकता हूं। अगर यहां पे बास्केट 4 होते 2, तो मैं ऐसा करता कि एक 4 यहां से निकालता, एक यहां डाल देता, इक्वल हो गया 4 4। अगर यहां पे 4 होते 3, लेट्स से 4 होते 4, तो यहां पे रहता 2, यहां पे पहुंच जाते 2,
तो ये हो जाता 4 4 इक्वल। मुझे इक्वल ही तो करना है एक तरीके से, ठीक है। तो 4 4 यहां हो गया, 4 4 यहां हो गया, समझे बात को। अगर यहां पे 4 4 4 होता, सिर्फ 4 होते 3, तो अगर मैं एक 4 भेजता वहां पे, तो यार एक लौता 4 क्या करता मेरा यहां पे, अचार डालता बैठ के, नहीं ना। बस यही दिक्कत है। अगर तुम्हें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो भाई ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स बचे हैं ना काटने के बाद, वो इवन होने चाहिए, समझे। मतलब यहां पे अगर मेरे पास जो एलिमेंट बचे हैं, लेट्स से यहां बचा है 4, यहां बचा है 6, तो मेरे पास नंबर ऑफ 4s, नंबर ऑफ 6, या फिर नंबर ऑफ यहां पे 5s, ये होने चाहिए इवन। अगर नहीं है इवन, तो उसका एक लौता पेयर ना वो अकेला रह जाएगा बास्केट 1 में या बास्केट 2 के अंदर, उसको कोई साथी नहीं मिल पाएगा। तो हमें चाहिए साथी, हमें नहीं माना है 7, मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूं, बट स्टिल हमें चाहिए साथी। तो हमें ऐसा चाहिए कि इसके अंदर अब एक चीज बदल गई, नंबर ऑफ पेयर जो होने चाहिए वो इवन होने चाहिए। जो बचे हैं, जो बचे हैं मतलब जो कट गए, मतलब जो यहां पे सेम नहीं थे, जो सेम थे वो काट दी मैंने, पहली काट दी, जो बचे हैं वो सेम होने चाहिए बस। और वो जो सेम और जो बचे हैं वो इवन होने चाहिए। अगर वो इवन है मतलब पॉसिबल है, इवन नहीं है पॉसिबल नहीं है, समझे, समझे, सही बात। मतलब हर एक एलिमेंट 4, लेट्स से 4 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है, तो 4 इवन होना चाहिए, 4 इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए। अगर 7 है तो 7 भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, सही है। तो पता चल गया हमें कंडीशन कि अगर मुझे चाहिए ऐसा कुछ तो मुझे हो जाएगा सॉल्व। मतलब अगर मेरे पास बचे इवन है, जैसे यहां पे -1 गया बिकॉज नहीं था, ठीक है। नाउ आई नो कि अगर मेरे पास कुछ बचा है तो वो सॉल्व तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अगर इवन नंबर टाइम्स सॉल्व हो जाएगा। अब चाहिए मिनिमम, सॉल्व तो हो जाएगा बट मिनिमम क्या आएगा। तो अब लेट्स से एग्जांपल लेते हैं इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेट्स से ये एग्जांपल ले लेते हैं 4 2 2 2 1 4 1 2, ठीक। अब मुझे मतलब ही नहीं है उन एलिमेंट से जो सेम है, वो मैंने काट दिए। यहां पे ये एलिमेंट सेम थे, मैंने काट दिया। 2 2 है, 1 1 है। नाउ आई नो वन थिंग कि अगर ये इवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पे इवन है, यहां पे इवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर स्पेसिफिक नंबर, लेट्स से जो 2 है, जो 1 है, जो 3 है, जितने भी नंबर्स हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इवन है मतलब स्वैप हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो अब मुझे अगर स्वैप करना है तो मुझे क्या करना है, यहां से एलिमेंट को भेजना है वहां पे, वहां से बल्कि उठा के लाना है एक एलिमेंट यहां पर। तो यहां पर आ जाएगा 2 1, यहां हो जाएगा 1 2। मुझे नंबर ऑफ मतलब मुझे एलिमेंट से मतलब है, मुझे इनका ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट हो गई मिनिमम ऑफ 1 2, ठीक, विच इज एक्चुअली में 1। तुमने देखा क्या हुआ, अगर मैं इसको ऐसे देख लूं कि यहां पे जो एलिमेंट रिक्वायर्ड ऑफ स्वैप है, मतलब मुझे जो एलिमेंट यहां से वहां शिफ्ट करना है, मुझे मतलब ही नहीं यहां पे क्या क्या एलिमेंट है। अब लेट्स यहां पे एलिमेंट थे 2 2, यहां था 1 1, कौन सा एलिमेंट वहां जाना है वो मैंने लिखा इस एरे के अंदर जो लेफ्ट में लिख रहा हूं मैं, और ये मान लिया राइट एरे है। बस मैंने यहां पे वो एलिमेंट लिखे जो वहां जाने हैं, यहां सिर्फ वही लोग खड़े रहे एल के अंदर जो आप आर में जाना चाहते हैं, ठीक है। आर में खड़ा हुआ बंदा 1 1, बिकॉज वो ही है जो वहां जाना चाहता है। अगला 2 जो था वो तो यहीं पर रहेगा ना, तो हटा दिया उसको मैंने। यहां पे एक बनता वो आर में रहेगा, वो हटा दिया मैंने। इस आर के अंदर वो एलिमेंट है जो एल में जाना चाहता है, विच मीन्स अगर यहां पे होता 2 2 2 2 6 6 3 3, यहां होता 5 5 6 6 5 5 4 4 4 4 3 नहीं 7 7, कुछ ऐसा होता। हट रहा है ये लो, कुछ कुछ ऐसा होता। तो मैं क्या करता कि कितने एलिमेंट वहां जाएंगे, अब एक 2 जाएगा, एक 2 जाएगा, एक 6 जाएगा, एक 3 जाएगा, एक 5 जाएगा, एक 4 जाएगा, एक 4 जाएगा, एक 7 जाएगा। तो अपनी एल के अंदर मैंने रखा एक 2 एक 2 एक 6 एक 3 एक 5 एक 4 एक 4 एक 7, ये एलिमेंट्स जो वहां जाएंगे, ठीक। अब मुझे ये है कि ये सारे एलिमेंट्स वहां जाएंगे और वो सारे एलिमेंट्स यहां पर आएंगे। तो मतलब क्या होगा, अगर मुझे इसको वहां भेजना है और मुझे पता है कि कॉस्ट होगी मिनिमम ऑफ ये वाला एलिमेंट और फिर जो यहां से उठा के ला रहा हूं यहां पे वो वाला एलिमेंट, और मुझे पता है कि यहां से हर एक एलिमेंट यहां पर भी आना ही आना है, सही, साफ साफ बात। तो यहां से 2 गया,
यहां पर, तो मैं हमेशा चूज करूंगा यहां का मिनिमम और यहां का मैक्सिमम। साफ सी बात है ना, इससे जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। ठीक है, तो कॉस्ट आई 2, यहां चूज किया 2, यहां से ऐसे पहले सॉर्ट तो कर लूं इसको, इसको पहले सॉर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा ऐसे 2 2 3 6, ये बन जाएगा 4 4 सॉरी 4 4 5 7। तो अब मैंने 2 को उठाया और पेयर किया इस 7 से, 2 को उठाया पेयर किया इस 5 से, तो कॉस्ट आई 2,5 विच इज 2। फिर कॉस्ट आई, इसको किया इस 4 से 3,4, कॉस्ट आई 3। फिर पेयर किया इस 6 को इस 4 से, कॉस्ट आई कितनी 6,4 विच इज 4। लिया हमेशा मिनिमम, तो कॉस्ट मेरी ये आएगी। अब मैं इसको ऐड करूंगा और रिटर्न कर दूंगा। बट एक सेकेंड, अगर कुछ मेरे पास ऐसा होता 8 8 6 6, ठीक, तो मैं अपने फॉर्म के हिसाब से यहां से उठाता 8, यहां से उठाता 6 और यहां डाल देता एल और आर एरे में, तो एल और आर, एल हो गया 8, आर हो गया 6, ऐसे करता मैं। साफ सी बात है। बट अगर लेट्स से यहां पे एक एलिमेंट होता 1 1, जो कि एक्चुअली में सेम थे, बट हम उन्हें काट चुके थे, हम तो उन्हें काट चुके, हम तो हटा चुके थे ना उस 1 को, बट वो था तो सेम, वो था भी। तो क्या करता मैं ऐसा करता कि उस 6 को उस 1 से रिप्लेस करता, तो यहां पे आता 6, यहां पे आता 1, तो कॉस्ट क्या होती मिनिमम ऑफ 1 और 6 विच इज 1। और फिर मैं उस 1 को जो यहां पर आ चुका है, जो यहां पर नहीं आना चाहिए था बिकॉज 1 की पोजीशन यहां पर है, उसको रिप्लेस करता है उस 8 से, तो कॉस्ट होती 1 ऑफ 8 विच इज 1। समझे क्या हुआ? तो जो मिनिमम एलिमेंट था, तो जो मिनिमम एलिमेंट था वो मैंने किया स्वैप, उसकी हेल्प से मैंने किया स्वैप बड़े एलिमेंट्स को। इससे ये पता चलता है कि सिर्फ ये कॉस्ट, सिर्फ ये कॉस्ट की जरूरी नहीं मिनिमम हो सकता है कि ये कॉस्ट मिनिमम हो या फिर 2 इंटू मिनिमम वैल्यू। अब मैंने 2 क्यों किया, एक बार ऐसे स्वैप करने में और एक ऐसे स्वैप करने में, समझे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो वो में एलिमेंट 2 का काउंट होगा। तो या तो मिनिमम होगा इन दोनों कॉस्ट, मतलब 8 और 6 का कॉस्ट, या फिर मिनिमम होगा मैं उस एक मिनिमम वैल्यू जो भी उस पूरी एरे में मिनिमम वैल्यू है, मैं उसकी हेल्प लेके अपने किसी भी एलिमेंट को स्वैप कर सकता हूं। तो मुझे जो कॉस्ट लेनी है, ये जो कॉस्ट होगी ना, ये जो मुझे लास्ट में ऐड करनी है, वो मुझे लेनी है हर एक एलिमेंट, हर एक स्वैप की, बिकॉज ये एक स्वैप की कॉस्ट है। 2 एलिमेंट्स, एक 6 और 8, 6 को वहां ले जाना, 8 को यहां पे लाना, इसकी कॉस्ट थी ये जो भी थी। तो मुझे ये कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के वेज हैं 2, या तो मैं 6 और 8 को ही स्वैप कर दूं तो कॉस्ट होगी 6, या फिर मैं 6 को लूं 1 से स्वैप करूं, फिर 8 को लूं 1 से स्वैप करूं, तो 6 और 8 तो आ गए, बट 1 इधर भी गया फिर इधर भी गया, तो वो स्वैप हुआ 2 बार, तो इट विल काउंट एज कॉस्ट ऑफ 1,6 plus cost of 1,8, which is 2 into cost of 1, and we know that 1 is the minimum element of this whole array, so it is 2 into minimum value of this whole array, which is this thing. I think now you got it. तो मुझे क्या करना है कि मुझे पहले इकट्ठा कर लेने हैं लास्ट में वो एलिमेंट्स। तुम्हें समझना है क्या करना है, पहले मुझे इकट्ठा करने हैं वो एलिमेंट्स जो एक्चुअली में, मतलब जो एक्चुअली में एग्जैक्टली सेम है, उनको मैं काट दूंगा। ठीक, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो आ गए मेरे पास, ऐसे करके फिर उनमें से मैं एक ही एलिमेंट उठा लूंगा और रख लूंगा अपनी एरे में। 2 बना ली मैंने एरे ऐसे करके, फिर इसको मैंने सॉर्ट कर दिया, इसका मैंने पेयर बनाया पहला और आखिरी का, उनसे उठाइए मिनिमम। बट जब मैं मिनिमम बना रहा हूं कॉस्ट, तो मैं हर बार ये भी चेक करता रहूंगा कि क्या मैं इसको स्वैप करने की बजाय कोई मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे चूज कर सकता हूं। तो मैं स्टार्टिंग में एक इटरेट करके इस पूरी दोनों एरे पे मिनिमम वैल्यू निकाल लूंगा, मिनिमम वैल्यू इस पूरी एरे की स्टार्टिंग में निकाल लूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, और फिर हर एक कॉस्ट बनाते हुए मैं चेक कर लूंगा कि क्या इट इज पॉसिबल टू गेट दैट मिनिमम। इफ यस देन वल्ला काम हो गया। तो वो हो जाएगी मिनिमम ऑफ दिस कॉस्ट और 2 into minimum of value which is of the whole array.
लेट्स सी द कोड क्विकली। इसका कोड मेरा इतना साफ नहीं है, यू कैन गेट मच बेटर क्लीन कोड्स। आई जस्ट रोट जल्दी जल्दी में, तो इट इज काइंड ऑफ नॉट दैट मच क्लीन, बट या आई विल शो यू वैसे भी। पहले मैंने अनऑर्डर्ड मैप बना लिए दो। ये बताएगा कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है ऑफ B1, फ्रीक ऑफ B1, ओके, एंड ये बताएगा फ्रीक ऑफ B2, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ B1, फ्रिक ऑफ एलिमेंट ऑफ B1, ये बताएगा फ्रिक ऑफ एलिमेंट ऑफ B2। फिर मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली, विच इज लेट्स से इटरेट कर दी इंटू मैक्स को। मैंने मिनिमम वैल्यू निकाली, बताया ना मैंने कि मिनिमम वैल्यू रखूंगा मैं स्टार्टिंग में निकाल लूंगा, वो बस मैंने मिनिमम वैल्यू यहाँ पे निकाल रही है दोनों RS से, बिकॉज वो मेरे काम आएगी इंटू टू इंटू कॉस्ट करने में, जो मैंने बताया था अभी अभी। फिर मैंने हर एक उस पर ट्रेड किया, यहाँ पे मैप सिर्फ इसलिए टू गेट द काउंट ऑफ एवरी एलिमेंट, मैंने बताया था ना कि काउंट इवन होना चाहिए, हाँ बस वही करने के लिए। फिर मैंने वेक्टर लिए V1 और V2, ये वही हैं जो मैंने उसके अंदर बताया था कि यहाँ पे जो बताया था ना मैंने कि मैंने दो बनाऊंगा L और R, ये वही V1 और V2 है। अब मैंने पहले ही मैप पे ट्रेड करा, यहां से मेरा एलिमेंट आ गया, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। मैंने पहले चेक करा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है जो मेरा बास्केट 1 है, जो उसके अंदर एलिमेंट जो मैं देख रहा हूं इस समय, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो एलिमेंट बास्केट 2 के अंदर है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ काउंट ही नहीं करना है। अगर कम है, अगर वो चीज कम है तो वो मैं इसमें काउंट कर लूंगा जो मैं अगला लूप लगा रहा हूं। मतलब मैंने ऐसे किया है कि मैंने मान लिया है कि जो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ वो ज्यादा है एलिमेंट्स, लेट्स यहाँ पे मैं बताया था ना 4 4 4 4 4 हो सकते हैं, यहाँ पे 2 2 2 2, तो यहाँ पे मैंने काउंट किया है कि यहाँ पे लेट्स से अगर 4 4 4 4 4, बास्केट 1 में 4 4 4 4 4 है, बास्केट 2 में 4 4 है, तो मैं इसी काउंट करूंगा कि बास्केट 1 में अब मेरे पास 4 दो बार है। बट अगर बास्केट 2 के अंदर 2 2 2 2 2 2 4 बार होता और बास्केट 1 में 2 2 होता, मतलब इट्स जस्ट हाउ यू सॉल्व दिस। छोटा भी कर सकते हो इसको। तो इसमें कंटिन्यू कर दिया कि मैं अगर मतलब जो मेरी बास्केट 1 है उसमें इतने एलिमेंट्स नहीं है कि मैं देखूं उनको, तो मैं नहीं देख रहा, तो मैं उसको देख लूंगा बास्केट 2 के अंदर जब मैं देखूंगा। इक्वल तो वैसे भी लाइट लेना है, इक्वल तो मैटर नहीं करता, वो तो किसी काम का नहीं है। बट अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वो मैं बास्केट 2 की जो इटरेशन होगी, मतलब मैप 2 की इटरेशन वहां पे देख लूंगा। अब मैंने चेक किया कि जो बचे हैं एलिमेंट्स, क्या वो 2 से डिवाइजेबल हैं, मतलब क्या वो इवन है। अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने बताया था ना। अगर है तो मतलब पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो मैंने बताया था ना कि अब क्या करना है हमें। अब जैसे जैसे यहां बताया था मैंने, अब पॉसिबल अगर है तो यहाँ पे 2 2 2 2 2 ऐसे है, बट मुझे करना हमेशा एक एक बार है, तो मैंने एक 2 डाल दिया यहाँ पे, एक 2 यहाँ डाल दिया, एक 6 डाल दिया, एक 3 डाल दिया। मुझे हर एक नहीं चाहिए दो ना, बिकॉज मुझे एक्चुअली में स्वैप तो वही करना है। तो बस मैंने यही किया, मैंने आधा कर लिया इस फ्रीक्वेंसी को। इतने इतने नंबर ऑफ मेरे पास अब हैं 2 हैं, बट फिर मैंने आधा कर लिया, बिकॉज मैं कहा था मुझे उतने ही डालने हैं अपने इस V1 वेक्टर के अंदर। बस फिर मैंने डालता रहा V1 के अंदर, एंड द सेम गोज फॉर मैप 2। सेम चीज करिए, अगर सेम है वो चीज लाइट लो, अगर वो चीज उसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो वो मैंने ऊपर हैंडल कर ही लिया है। अगर अगर वो इवन नहीं है तो मतलब -1 डालो, अगर सही है इवन है तो आधा कर लो, डालते रहो V2 के अंदर। अगर इन दोनों का बराबर नहीं है साइज, मतलब यहां पे अगर 6 एलिमेंट्स हैं, यहां पे अगर 4 एलिमेंट्स हैं, तो वैसे तो ज्यादा मैटर नहीं करेगा इससे। स्टिल लाइक यू कैन जस्ट ग्रैब सम अनदर एलिमेंट टू गेट इट हियर, बट स्टिल फॉर टू बी इन द सेफ साइड यू कैन जस्ट हैव इट। फिर मैंने सॉर्ट किया दोनों वेक्टर्स को, V1 और V1 नॉट बिगिन V2 नॉट एंड, और फिर मैंने कहा था ना कि यहाँ से स्टार्ट करना यहाँ पे एंड लेना है, यहाँ स्टार्ट करना यहाँ पे एंड लेना है, यहाँ स्टार्ट करना यहाँ पे एंड लेना है, बस वही किया। आई जस्ट ग्रैब द मिनिमम वैल्यू ऑफ पहला एलिमेंट का, मतलब V1 का स्टार्टिंग और V2 का एंडिंग, इसका मिनिमम लिया, वैल में डाल दिया। बट वैल ही जरूरी नहीं आंसर हो, बिकॉज मिनिमम वैल्यू जो देखी थी हमने इंटू 2, बिकॉज एक बार यहाँ एक बार यहाँ, वो भी आंसर हो सकता है, मानोगे नहीं बात को। बस वो डाल दिया यहाँ पे, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू।
यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, बिकॉज मुझे अब हर एक कॉस्ट को ऐड करना है, हर एक मिनिमम कॉस्ट को ऐड करना है टू गेट दैट फाइनल मिनिमम कॉस्ट। तो ये हो गई, एंड वाला, हाँ, यू कैन जस्ट गेट इट डन, एक्सेप्टेड। Cool. It was this. I guess I took a lot of time to explain things, but yeah, I guess it would be worth it. See you guys in the next video. Until then, bye bye. See you. मजा आया तो लाइक करना, नहीं आया तो बताना क्या नहीं आया। एंड या, बाय बाय। मेरा हाथ वहां जाएगा नहीं। So cool. Bye.